Hello, students. Our today's chapter is Hector Hummingbird by Graham King. Okay, this is a story of a bird, as you can see from the name of the story, and this is the story of a hummingbird whose name is Hector. These are the word meanings of the lesson. First is flitted. Flitted means moved lightly and quickly from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाना. Grumpily in an angry manner means गुस्से से. Buzz off, go away at once. के उसी टाइम चले जाओ. Footmen, servants. Array and arrangement of things. ये चीज़ों का अरेंजमेंट करना, ढंग से रखना उनको. टिडबिट्स, स्मॉल टेस्टी बिट्स ऑफ फूड, छोटी छोटी खाने की टेस्टी चीज़ें. चक्कर, लाफ सॉफ्टली, मुस्कुराना धीरे से. डार्टिंग, रनिंग और मूविंग वेरी क्विकली, तेजी से भागना. डेंगल्ड, हंग और स्वंग फ्रीली, हवा में लटकना जैसे. गास्ट, took a deep breath in surprise. ओके, डीप ब्रीथ करना हैरानी से. ओके. वाइन, a climbing plant, जो दूसरों बेल होती है, पेड़ों पे चढ़ जाती है जो. इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मीन्स वेरी क्विकली इन अ शॉर्ट टाइम, मतलब तेजी से बहुत कम समय में. इंसिस्टेंस, to demand something and refuse to accept no as an answer. कि किसी चीज़ की डिमांड करना और ये कहना कि नो नहीं सुनूंगा मैं, कि it must be yes. Toasted, in a group wished somebody happiness or success. ग्रुप में किसी की खुशी के लिए और सक्सेस के लिए, सफलता के लिए टोस्ट करना. Okay class, we are going to read the chapter Hector Hummingbird. Okay, this is a story about a bird whose name is Hector. That is a hummingbird. Hummingbird is the smallest bird in the world. They are not found in India. They are found in other countries like America, and they can move their wings at very great speed, at such a speed that कि आवाज़ आती है हमिंग की ना, उनके फ्लटर करते हैं जब अपने विंग्स, तो आवाज़ आती है हमिंग की. ठीक है. और 50 to 80 टाइम्स एक सेकंड में वो विंग्स को फ्लटर कर सकते हैं. और उनके बीक जो है दैट इज़ वेरी लॉन्ग होती है बहुत उनकी बीक. यू कैन सी इट इन द पिक्चर ऑफ योर लेसन. ओके. एंड सम beaks are given here in the starting of the chapter. First one is of parrot, second is of pelican, third is of stork, and fourth is of duck. Okay, now we will read the lesson. Something big was happening in the forest. Hector Hummingbird could feel the excitement. He flitted over to where Oliver Owl was sleeping on a branch. You should open your books with this, okay? Something big was happening in the forest. Hector Hummingbird को feel हो रहा था. He was feeling that something was happening in the forest, something special. Hector Hummingbird. Hector is its name. Could feel the excitement. उसको excitement feel हो रही थी कि कुछ हो रहा है बहुत. He flitted over to where Oliver Owl was sleeping on a branch. Flitted means moved lightly and quickly from one place to another. तो वो कहाँ जाता है? Where Oliver Owl was sleeping on a branch. Oliver जो है owl का नेम है. Owl is sleeping on a branch. सो रहा था वो branch पे. Who is waking me up? asked Oliver Owl grumpily. ओलिवर राउल ने गुस्से से पूछा है. ग्रम्पीली मीन्स एंग्रीली. गुस्से से पूछा, हु इज वेकिंग मी अप, कौन उठा रहा है मुझे. समथिंग इज हैपनिंग, आई कैन फील इट, सेड हेक्टर. हेक्टर ने कहा कि समथिंग इज
going to happen in the forest. कि कुछ हो रहा है जंगल में. I can feel it. मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ है. Yes, yes. And you need me to tell you what it is. और तुम्हें ये पता करना है कि क्या हो रहा है मेरे से, है ना. Growled Oliver. Growled means made a low harsh sound in the throat. Oliver ने कहा गुस्से से कि तुम्हें मुझसे पूछना है कि क्या हो क्या रहा है जंगल में. His huge eyes wide open now. उसकी आईज कैसी थी? वर ह्यूज. किसकी? ओलिवर की. खुल गई थी, वो उठ गया था अब. He was the wisest owl in the whole forest. वो सबसे ज्यादा अक्लमंद आउल था फॉरेस्ट में. And Hector knew that Oliver would know what was happening. और हेक्टर को पता था कि ओलिवर को जरूर पता होगा कि क्या हो क्या रहा है. It's simple, yawned Oliver. Yawn means to open your mouth widely. अब उबासी लेना. ओलिवर कहता है इट इज वेरी सिंपल. द किंग इज कमिंग टू द फॉरेस्ट फॉर अ पिकनिक. किंग आ रहा है पिकनिक करने फॉरेस्ट के लिए. नाउ बज ऑफ एंड लेट मी स्लीप. ही क्लोज्ड हिज बिग बिग ब्राउन आईज. फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली एंड सेड बज ऑफ. बज ऑफ मीन्स गो अवे एट वंस एंड लेट मी स्लीप. और मुझे सोने दो. द किंग. हेक्टर हैड नेवर सीन द किंग. कहता अच्छा किंग आ रहा है. उसने कभी नहीं देखा था किंग को. He spent the rest of the morning sipping nectar from the forest flowers and then he heard the sound of voices. तो उसने सारा दिन जो है अपना टाइम कैसे बिताया? Sipping nectar from the forest flowers. Means उसका फूड क्या था? nectar. To sip nectar from the flowers. उसने nectar पिया. Then he heard the sound of voices. फिर उसे आवाजें सुनाई दी. He fluttered through the trees until he came across the picnic. Fluttered means flitted, means to move lightly and quickly. अपने पेड़ों के बीच में से तेजी से वो निकला और at last पहुंच गया जहाँ पे वो पिकनिक मना रहे थे. Wow, there was the king and the queen and even the little princess. कौन कौन था यहाँ पे रॉयल फैमिली से? किंग, क्वीन और प्रिंसेस उनकी छोटी बेटी. Hector watched from a tree as the picnic continued, with footmen serving a huge array of treats and tidbits. हेक्टर ने ट्री से देखा, पेड़ पे से बैठा हुआ था. वो कंटिन्यू से वॉच कर रहा था, कंटिन्यू लगातार देख रहा था. विद फुटमैन, सर्वेंट्स के साथ. वो सर्वेंट्स क्या कर रहे थे? सर्विंग अ ह्यूज एरे. एरे मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स. Of treats and tidbits. They were serving them tasty food. Many types of tasty food. Other servants flitted about making sure everything was perfect for the royal family. Now the writer has used simile like flitted. यहाँ पे भी यूज किया उसने servants के लिए और flitted फर्स्ट सेकंड सेंटेंस में भी यूज किया उसने लेसन के. फ्लिटेड ओवर टू वेयर ओलिवर. फ्लिटेड उसके लिए हमिंग बर्ड के लिए भी यूज किया उसने तो, और फ्लिटेड उसने सर्वेंट्स के लिए भी यूज किया. अबाउट मेकिंग श्योर एवरीथिंग वाज परफेक्ट फॉर द रॉयल फैमिली. ये सब कुछ रॉयल फैमिली जो आई हुई थी उनके लिए सब कुछ ठीक हो, अच्छा हो. हेक्टर चक्कल्ड. चक्कल्ड मीन्स लाफ्ड सॉफ्टली. धीरे से मुस्कुराया. द सर्वेंट्स वर जस्ट लाइक हमिंग बर्ड्स डार्टिंग हेयर देयर एंड एवरीवेयर. कि वो जो सर्वेंट्स थे वो कैसे काम कर रहे थे? हमिंग बर्ड की तरह कि जल्दी से इधर उधर घूम रहे थे ताकि रॉयल फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो. There are some questions from the first part. Okay, first one is, what was the name of the bird? Answer is Hector. Question, what was the name of the owl? Answer is Oliver. Next is, what was Oliver doing when Hector came to him? Answer, it was sleeping. Oliver was sleeping at that time. What is the food of hummingbird? The food of the hummingbird is nectar. Okay, nectar. It sips nectar from the flowers. Who was coming to the forest for picnic? Answer is, the king was coming to the forest for
picnic. Everybody was having a wonderful time until the queen looked up into the trees and screamed and screamed. सबको मजा आ रहा था, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे थे सब. Until the queen looked up, जब तक के क्वीन ने ऊपर नहीं देखा, into the trees, पेड़ों में, और चिल्लाई. To make a scream means to make a loud and high sound. My baby, she cried. My little girl. क्या चिल्लाई वो? My baby, मेरा बच्चा, मेरी छोटी बेटी. Everybody looked up while they had been so busy picnicking. The princess had climbed up high into a big old oak tree and was now on a branch far above the ground. सबने ऊपर देखा because वो सारे they were too busy और they in their enjoyment. मजा कर रहे थे वो लोग और उन्होंने ध्यान नहीं दिया प्रिंसेस कब वो पेड़ पर ऊंचा चढ़ गई पुराने बिग ओल्ड ओक ट्री था जो पुराना था और बहुत बड़ा था. एंड वॉज नाउ ऑन अ ब्रांच फार अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से बहुत ऊंची ब्रांच पे वो चढ़ी हुई थी उस टाइम. सेव माई डॉटर कमांडेड द किंग. द किंग ऑर्डर्ड दैट हिज डॉटर शुड बी सेव्ड, कि उसकी डॉटर को सेव बचाओ. बट जस्ट एज हिज मैन रैन टूवर्ड्स द ट्री द प्रिंसेस स्लिप्ड. पर जैसे ही उसके वो जो सर्वेंट थे, फुटमैन थे, वो भागे उसको बचाने के लिए, प्रिंसेस का हाथ छूट गया, स्लिप हो गई. ग्रैबिंग द ब्रांच विद हर हैंड्स शी डैंगल्ड हेल्पलेसली अप इन द एयर. गिरी नहीं थी वो, उसने क्या किया, शी सडनली होल्ड अ ब्रांच ऑफ द ट्री विद हर हैंड्स और हैंग हो गई, वहां पे हवा में लटक गई हेल्पलेसली. She couldn't hold on very long and would surely fall, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी और she can't hold, वो ज्यादा देर पकड़ नहीं सकती थी उसको और पक्का वो गिर जाती. Suddenly the crowd gasped. Gasp means catch one's breath with an open mouth. अपना मुंह खुला ही रह गया उनका. There way up in the tree was a hummingbird. वहां उस पेड़ पे काफी ऊंचा कौन बैठा था? Hummingbird. Pulling the princess by the dress back into the branch. उसने ड्रेस उसकी चोंच में उसने पकड़ी हुई थी और वो खींच रहा था ताकि वो ब्रांच पे फिर से आ जाए लड़की. हेक्टर pulled and his wings hummed and hummed. वो खींचता गया हेक्टर, और उसके विंग्स जो थे hummed and hummed, मतलब बहुत तेजी से वो फ्लटर करते हैं ना, तो आवाज आती है हमिंग की. hummed and hummed. But the princess was too heavy. बट कंपैरेटिवली प्रिंसेस जो थी वो बहुत हैवी थी उससे, हमिंग बर्ड से. ही कुड फील हर स्लिपिंग एज हर ग्रिप ऑन द ब्रांच फेड. वो फील कर सकता था कि वो गिर रही थी, स्लिप हो रहा था उसका हाथ, ग्रिप जो थी उसकी ब्रांच पे जो उसने पकड़ा हुआ था वो कम होती जा रही थी. देन अ वॉइस साउंडेड इन द एयर. उसके कानों में एक आवाज आई. ही हु इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ मस्ट बी स्मार्ट इनफ. हमिंग बर्ड को क्या सुनाई दिया? एक आवाज सुनाई दी. क्या थी वो? कि अगर आप स्ट्रांग नहीं हो इतने तो यू शुड वर्क इंटेलिजेंटली. दिमाग से काम लेना चाहिए. अगर बॉडी से स्ट्रांग नहीं है इंसान तो उसे अपने दिमाग से काम लेना चाहिए. हेक्टर ग्लांस्ड अराउंड बट कुडंट सी ओलिवर. हेक्टर को क्या पता था सबसे इंटेलिजेंट वाइजेस्ट कौन है? ओलिवर आउल जो था. उसको लगा ओलिवर ने बोला है, वो उसने ग्लांस्ड मीन्स टू लुक क्विकली. उसने आसपास तेजी से देखा बट कुडंट सी ओलिवर, पर उसे ओलिवर दिखाई नहीं दिया. He did however see a strong vine hanging against the tree's trunk. Tree's trunk means पेड़ का जो मेन पार्ट होता है, जो भी कहते हैं उसको, पेड़ का तना होता है जो मेन. उसने देखा कि उसके आसपास एक क्लाइंबिंग प्लांट है, काफी स्ट्रॉन्ग. वाइन होती है क्लाइंबिंग प्लांट जो चढ़ जाती है पेड़ पे, बेल. वो उसके अराउंड इर्द गिर्द लटकी हुई थी. इन द ब्लिंक ऑफ एन आई हेक्टर ग्रैब्ड द एंड ऑफ द वाइन. इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मीन्स दिस इज एन इडियम. मीनिंग क्या है? वेरी क्विकली. हेक्टर ने
ग्रैब्ड मीन्स गॉट होल्ड ऑफ, उसको पकड़ लिया उस ब्रांच को बहुत तेजी से। एंड एज अ प्रिंसेस फेल, प्रिंसेस का हाथ छूट गया, वो गिर रही थी, तो ही फ्लू विद इट अराउंड एंड अराउंड द प्रिंसेस, वो उस वाइन को पकड़ के उसके आसपास घूमने लगा। ओनली अ हमिंग बर्ड कुड हैव फ्लोन सो फास्ट, एक हमिंग बर्ड ही है जो इतनी तेजी से उड़ सकता था। एवरीबडी गास्प्ड, आई टोल्ड यू कि खुला रह जाना मुंह हैरानी से। ओके, एज अ प्रिंसेस केप्ट फॉलिंग, वो जो प्रिंसेस थी गिर रही थी। एंड देन शी वाज सडनली पुल्ड अप शॉर्ट, तो क्या हुआ एट द एंड ऑफ द, जब वो गिरने लगी बिल्कुल जमीन के पास, वो लटक गई। किससे? वाइन उसके आसपास इर्द गिर्द लिपट गई थी ना। आपने कोई बंजी जंपिंग देखा है? बंजी जंपिंग में वो आपको स्प्रिंग से बांध देते हैं और ऊपर से नीचे जब कूदता है इंसान तो जमीन से टच करने से पहले वो लटक जाता है और फिर से वो स्प्रिंग जो है उसको खींच लेता है। ऐसे ही वो लड़की जो थी वो गिरने से पहले बस लटक गई, वो टच नहीं किया उसने जमीन को। द वाइन हेल्ड, उस वाइन ने उसको पकड़ लिया। द प्रिंसेस डेंगल्ड सेफली इन द एयर, अब वो हवा में लटक रही थी वो प्रिंसेस। 3 of the king's men scrambled up the tree and soon had her safely on the ground again. अब जो किंग के फुटमैन थे उनमें से 3 जो थे वो भागे। टू मेक वंस वे क्विकली, स्क्रैम्बल्ड मीन्स टू मेक वंस वे क्विकली, तेजी से भागे अपना रास्ता बना के पेड़ की तरफ, और उन्होंने लड़की को सेफली जमीन पे उतार लिया, वो उतार दी वाइन। शी वॉज अनहर्ट, उसको चोट नहीं आई थी। द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विद द क्राई हुर्रा फॉर द हमिंग बर्ड, पूरा जंगल खुशी की आवाज से भर गया। क्या थी वो? हुर्रा फॉर द हमिंग बर्ड, चिल्ला रहे थे, हमिंग बर्ड की तारीफ कर रहे थे। हेक्टर मूव्ड इनटू द कासल एट द किंग्स इंसिस्टेंस, अब जो हेक्टर हमिंग बर्ड था उसको किंग ने डिमांड की कि आप कि वो वहां उनके पास आके रहे, कासल में घर बना दिया उसके लिए। द रॉयल गार्डनर्स प्लांटेड स्पेशल फ्लावर गार्डन्स फुल ऑफ हिज फेवरेट ब्लूम्स, जो रॉयल गार्डनर्स थे, माली थे वहां के, उन्होंने स्पेशल फ्लावर्स जो उसको पसंद थे वो वाले वहां पे प्लांट कर दिया आसपास। He was great friends with the princess, वो बहुत अच्छा दोस्त था प्रिंसेस का। and they often played together in the forest although she was not allowed to climb any more trees. अब वो किसका दोस्त बन गया? प्रिंसेस का, और वो खेलते थे कहाँ? फॉरेस्ट में, जबकि उसको अलाउड नहीं था बेटी को, प्रिंसेस को, कि वो पेड़ों पे चढ़े। The king gave a huge feast and all the guests stood and toasted Hector. अब किंग ने फीस्ट दिया, बहुत खाना किया बहुत बड़ा, और अपने जो सारे गेस्ट आए हुए थे वो खड़े होके, टोस्टेड मीन्स विश्ड समबडीज हैप्पीनेस और सक्सेस, उन्होंने टोस्ट किया किसके लिए? हमिंग बर्ड के लिए, हेक्टर हमिंग बर्ड के लिए, क्योंकि उसने उसकी लाइफ सेव की थी प्रिंसेस की। हु hummed with happiness, वो भी फ्लटर कर रहा था अपने विंग्स को खुशी से। Then the king declared, from now on you shall be known as Hector Hummingbird, the hero. तो किंग ने क्या डिक्लेयर किया कि अब से तुम्हें क्या कहा जाएगा? हेक्टर हमिंग बर्ड द हीरो, कि तुम हीरो हो, हमिंग बर्ड। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। Some questions from the second part. First is, who first discovered that the princess had climbed up the tree? Answer is, the queen discovered that the princess had climbed up the tree. Next is, who did Hector look for but couldn't find? Answer is Oliver. He looked for Oliver. What did Hector use to tie the princess with? Answer is a strong vine hanging against the tree trunk. एक strong vine बेल जो कि ट्री ट्रंक के आसपास लिपटी हुई थी। ओके,